Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You all are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. सामने है स्क्रीन्स पर जो हमें कवर करने हैं. जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ what we will be doing today. गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे. GS से नहीं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेंस निकलने लगा था. अर्थराइटिस और फुट रॉट डिसीज, ये दोनों डिसीजेस हैं. प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यस, बट स्पेसिफिकली प्रीलिम्स. ये दो आर्टिकल्स आपके मेंस के लिए भी हैं. देखो मैं आपको एक इन जनरल बता देती हूँ, जितने भी आज के आर्टिकल्स हैं सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग, ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हैं और दोनों जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरमेंट डोमेन से लिंक कर सकते हो. तो डोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, क्यों न्यूज में है, वो डिस्कस करेंगे. और ये डिसीज क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, किसको होता है, क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी डिस्कशन होगी. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. थम्स अप साइन दिखता है आपको, उस पर क्लिक करना है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स. डू सब्सक्राइब टू द चैनल Sriram's IS, who is serving the nation since 1985, so that trust has been built by this platform offline. Now we are online as well, so you can share these sessions with your friends and community of UPSC, SSC, be it state PCS, because this particular सेशन और these sessions, these series, डेली करंट अफेयर सीरीज, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बाकी सबको भी आप शेयर कर सकते हो. चलिए शुरू करते हैं. पहला आर्टिकल आपके स्क्रीन्स पर है. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 ने ये रिवील किया है कि जो एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड बाय 73% सिंस 1970. तो वो क्या कह रहे हैं, there's a decline in the wildlife population globally over the past several decades. आप इसमें रीजन नंबर ऑफ हो सकते हैं. बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. हम जब एनिमल्स के IUCN स्टेटस वगैरह पढ़ते हैं और किसी भी स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट द थ्रेट दे आर फेसिंग, लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, like climate change, like pollution, like over exploitation of species on biodiversity. So there are n number of reasons for that. ठीक है, हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में. सबसे पहले तो ये रिपोर्ट हर साल नहीं पब्लिश होती है, बायनियल रिपोर्ट है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इट इज पब्लिश्ड एवरी 2 years. तो बायनियल रिपोर्ट है, पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर nature. It looks at the state of world's biodiversity, the variety of life on earth, how healthy the planet is. ये रिपोर्ट ये देखती है. ये जो 2024 का ये जो एडिशन है, दिस इज द 15th edition, राइट. सो यहां पर ये जो अपना WWF है, WWF uses Living Planet Index, right? What it is, it tracks the average trend in the wildlife population rather than focusing on increase or decrease in the individual species number. मतलब instead of just looking कि whether a single species is growing or a single species is shrinking, ये overall trend देखता है for many species. So by tracking these changes over time, LPI helps scientists understand क्या certain species are at risk of disappearing और whether the ecosystems are functioning properly. तो एक early warning sign की तरह act करता है if wildlife population is in danger, right? So it acts as a early warning indicator of extinction risk and it helps to assess the ecosystem efficiency. Now what this report highlights, decline is reported in the freshwater ecosystems. Biggest decline in wildlife populations, freshwater ecosystems with 85% drop. फिर terrestrial ecosystem 69% and marine ecosystem at 56%. फिर ये regional impact भी देखते हैं. WWF highlights the declines in monitored animal population around the world as follows. अब उसमें Latin America and Caribbean में they have the worst loss. Wildlife population dropping by 95%.
Africa 76% decline, Asia Pacific region 60% decline, Central Asia 35% decline, and North America 39% का decline. What is the main threat to wildlife? Habitat loss, overexploitation, climate change, pollution, invasive species and diseases. ठीक है, किसी को इन्वेजिव स्पीशीज नहीं पता तो इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है, बाहर का कोई आता है और फिर वो आपके रिसोर्सेज पे खतरा हो जाता है ना, वही है नॉन नेटिव स्पीशीज दैट आउट कम्पीट और हार्म द नेटिव वाइल्ड लाइफ, ये वो वाले स्पीशीज है। सो अब क्या है, देखो हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ माइनिंग, फ्रेगमेंटेशन, लॉगिंग, सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। अब कुछ डेंजरस लेवल्स की जब बात आ ही रही है तो हेयर ऑनगोइंग मास कोरल रीफ ब्लीचिंग जो हो रही है, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। 75% ऑफ द वर्ल्ड रीफ्स आर बीइंग ब्लीच्ड। Amazon rainforest is at the risk of severe damage. Greenland, West Antarctica में ice is melting quickly. Unfortunately, many of the United Nations Sustainable Development Goals for 2030, they are not on track. They are unlikely to meet their targets. And 30% are already behind or worse than when they started in 2015. More than half of these goals are likely to be missed. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है to take urgent actions to protect our planet and to meet the global environment standards. अच्छा, पॉलिटी के सेशंस चल रहे हैं, you can refer them. There are spoon feed sessions, you can refer them as well. N number of sessions are there regarding polity, regarding current affairs, और भी various other topics पे आते रहते हैं. किसी को कोई भी जैसे पॉलिटी में डाउट आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशंस चल रहे हैं, you can refer them, right? तो क्वालिटी वही सेम है, मतलब zero compromise on quality. So do refer these sessions for your preparation. They are going to help you out definitely. Now इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर. RBI is planning to create a data repository. So RBI proposes to create a data repository, namely the Reserve Bank Climate Risk Information System. This means they will collect data, they will store the data that is related to climate risk. That could affect the economy that could affect the financial system. तो इसका purpose क्या है? Why they are creating this data repository? So that you can track climate related risk, so that you can analyze climate related risk, जैसे how extreme weather या फिर rising sea levels या कोई भी environmental change जो हो रहा है, they might impact the banks, the businesses, the economy. So they'll track that, and it will help you in making better decisions also by providing you with the detailed information about these risks to the financial institutions, ताकि you can prepare and you can adapt to the potential climate related challenges. That is the whole scenario. एक जिस्ट पता चल गई तो बस यही है. It will bridge the gap in climate related data जो अभी currently देखो बिखरा हुआ है. Climate related problem को अगर fix करना है, जो data है ना वो scattered है. It is very hard to access that. Right now, data is coming from various different sources and in various formats with different units of frequencies. Confusing हो गया? अब क्या है? The system will have two parts. ये मैंने आपको बता दिया है. Web based directory and the second part will be a data portal. Now what is web based directory? एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह है जहां पर you can find the information about different climate data sources, weather, location data. It is available for everyone, RBI की वेबसाइट पे. दूसरा है data portal. It will contain organized data, processed data, making it easier for banks, for researchers, and for others also to use this climate data for decision making. तो सिंपल सी बात है, it's a system to make climate data more accessible, more organized, more easier to use for everyone. ठीक है. Now RBI plans a phased launch of it. Phased launch मतलब बताइए. पहले तो they will launch web based directory which list the climate data sources. बाद में they will gradually introduce data portal to provide processed climate data.
right? That is what they mean by phased approach. It is important, see, for the regulated entities like banks to assess climate related risk, ताकि वो भी they can ensure the stability of their financial records, overall financial system. Here on 28 February 2024, RBI issued draft guidelines for disclosure framework on climate related financial risk, जहां पर this framework requires जो regulated entities हैं, they have to share the information in 4 key areas: governance, how climate risk are managed by the leadership; strategy, what are the plans to deal with the climate risk management, how they are identifying, how they are managing climate risk, and metrics and targets, progress, measuring the progress, setting the goals for reducing the climate risk. ठीक है, आगे बढ़े. Foot rot disease is killing the sheep and goats of Gadi shepherds in Himachal Pradesh. Foot rot disease ना एक contagious infection है जो sheeps और goats को affect करता है. They are unable to walk properly. It is caused by bacteria. So it is a contagious disease affecting the interdigital tissue of ruminants. It is one of the most common causes of lameness in cattle and sheep and can result in serious economic loss also. ये देखो लिखा हुआ है, लाइंस तो मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, बट समझते हैं, बातों से, डिस्कशन से चीज़ों को लेकर चलते हैं. देखो हिमाचल प्रदेश में ना गदी शेफर्ड्स is a traditional community that relies on their sheep and goats for livelihood, and they are facing this problem क्योंकि infection फैल रहा है among the animals. They are killing them in some cases. Serious issue है क्योंकि livelihood threaten होती है जो livestock पे dependent है, for wool, for milk, for meat, various n number of reasons. Now this disease is a contagious infection. It affects the soft skin between the toes of the ruminant animals like cattle है, sheep है, goats हैं. फिर उनको चलने में दिक्कत होती है. फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है because it weakens the animals and make them less productive. बैक्टीरिया जो है that causes it, it is caused by a bacterium that is called as Diclobacter nodosus bacteria. Causative agent है ये. So here the bacteria enters the animal's foot. कैसे? जैसे कहीं पर कट है, इंजरी हुई, कट लगा हुआ है और स्क्रेप्स, रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, थॉर्न्स. So scrapes are caused by the sharp object. So अब ये जो डिसीज है ना, ये वेट सीजन्स में और ज़्यादा खराब हो जाती है फिर बात. When the ground is muddy, क्योंकि मॉइस्चर बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू थ्राइव. सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर wound between the toes, lameness, animals will have trouble walking, right? ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया है. सीजनल है, ड्यूरिंग वेट सीजन्स हाईएस्ट इंसिडेंस होते हैं इसके. लेमनेस, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, डेथ भी हो सकती है इन सीवियर केसेस. क्या ट्रीटमेंट है? पहले तो इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन करें. अप्लाई डिसइंफेक्टेंट टू किल द बैक्टीरिया. गिविंग एंटीबायोटिक्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डिसीज इज यूजुअली एनफ. रिकवरी आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाएगी. अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि बात कर रहा है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में. That is preparing to introduce a captivating addition to its offerings for the first time, a thrilling ropeway safari. सिंपल सी बात यह है कि ये टाइगर रिजर्व is planning to start a ropeway safari. Visitors will be able to experience the park from high above. रोपवे से. अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगी अच्छा कौन सा रिजर्व है जरा मुझे बताना जहां पर रोपवे सफारी लेकर आ रहे हैं. नहीं, सवाल कहाँ से आएगा? कहाँ पड़ता है, कौन सी नदी बहती है, कौन सा कॉरिडोर बनता है. अगर आप ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो पहले कौन सा आएगा? क्या ये सेम लैटिट्यूड पे पड़ते हैं? नवेगांव, नागजीरा और जैसे तडोबा अंधेरी है, या अलग अलग लैटिट्यूड पे पड़ते हैं? ठीक है,
या मान लो ये यहाँ है, ऊपर चले जाओ थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश, वहां पर कोई हो एक, तो क्या वो सेम लैटिट्यूड पे पड़ते हैं? अगर एक उत्तर प्रदेश का यहाँ है और एक यहाँ है, तो ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो क्या पहले ये आएगा या ये आएगा? ये मत सोचना कि वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहेंगे। अच्छा महाराष्ट्र में बता दो जरा कि मेलघाट पहले आएगा या तड़ोबा अंधेरी आएगा। नहीं, एक स्टेप और आगे जाएगी। ठीक है, और ये कनेक्टिविटी बन रही है, ये पूरा देखना, इधर नवेगांव नागजीरा, नीचे तड़ोबा अंधेरी, उसके नीचे तेलंगाना में एंटर कर जाओ, कवल कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसके नीचे अमराबाद, फिर आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाओ, नागार्जुना सागर, श्रीसाइलम। इधर महाराष्ट्र में ही और कौन कौन से हैं? बोर बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, मेलघाट, सह्याद्री, ऐसे पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? होमवर्क यही है, ये आसपास के जितने भी इसके जुड़े हुए टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स पड़ते हैं आपको कवर करने हैं। ये जो हमने देखा तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहां पड़ता है। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये जो नाम पड़ा है ना तड़ोबा, ये है, इट लाइज विद द नेम ऑफ गॉड तरु, जो ट्राइब्स वर्शिप करते हैं, दैट लिव इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ तड़ोबा एंड अंधेरी रीजन्स। और ये जो अंधेरी वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एक नदी का नाम है जो मियंडर करती है थ्रू द फॉरेस्ट। ये जो रिजर्व है ये 625.4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। दिस इंक्लूड्स तड़ोबा नेशनल पार्क, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको अभी बाकी दिखाया ना, इसका कॉरिडोर कनेक्टिविटी नागजीरा, नवेगांव, पेंच टाइगर रिजर्व के साथ भी है। Biogeographically, the reserve falls in the central plateau province of Deccan Peninsula. Undulating topography है, rich biodiversity है, tropical dry deciduous आपको vegetation देखने को मिलेगी। There are 2 lakes and 1 waterway in the reserve also, तड़ोबा lake, तड़ोबा river, कोलसा lake, ये सब है। फ्लोरा में आपको यहाँ पर काफ़ी ये स्पीशीज हैं, ये देखने को मिलेंगी, और एनिमल्स में भी टाइगर, लेपर्ड और बर्ड्स की स्पीशीज हैं, स्लॉथ बियर है, वाइल्ड डॉग है, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़े, अर्थराइटिस के बारे में पढ़े। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को होता है, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। एक ऐसी कंडीशन है दैट इज अफेक्टिंग मिलियंस वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हो ओल्ड एज, जो जब बुढ़ापे की ओर जब जाते हैं तो आपने देखे होंगे ऐसे हाथ हो जाते हैं, जॉइंट्स वीक हो जाती हैं। अर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। क्या है अर्थराइटिस? अर्थराइटिस इज व्हेन, सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, व्हेन वन और मोर ऑफ योर जॉइंट्स मतलब जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं, दे बिकम इन्फ्लेटेड और दे स्टार्ट टू वियर डाउन। पेन होती है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है। अब अर्थराइटिस भी 100 टाइप्स के हैं। इट कैन शो अप इन मेनी वेज, इट कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अर्थराइटिस होता है जब पार्ट्स ऑफ द जॉइंट स्टार्ट टू ब्रेक डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट, राइट? This usually affects cartilage, it is a smooth rubbery tissue that covers the end of bones in the joint. अब ज्यादा साइंस में नहीं जाते हैं, बट जस्ट फॉर एन आइडिया आपको मैं बता रही हूं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अर्थराइटिस में भी मैंने आपको बताया रूमेटोइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? फिर अर्थराइटिस पे ही डिपेंड करता है। मेन गोल जो होता है ट्रीटमेंट में, वो सिम्टम्स को कम करना होता है और क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करना होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर समवन हैज ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस और अनदर टाइप, उस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। गोदावरी नदी के बारे में पढ़े। कहां से बहती है? अब ऐसे तो नहीं बताना कि मैं आपको मैप में एक पॉइंट बता देती हूँ यहां से बहती है। आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, तीनों चीजों को कनेक्ट कर लो। ब्रह्मगिरी माउंटेन्स है
त्र्यंबकेश्वर में लोकेटेड है। त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ महाराष्ट्र, वहां से ये नदी बहती है। कोई त्र्यंबकेश्वर गया हो तो बताना। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है क्या, बताना। गोदावरी रिवर जो है वो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर, पहली गंगा है, दूसरी लॉन्गेस्ट गोदावरी है। और ये बाय द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैरीज, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट river also. It drains about 10% of India's total land area. गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, साउथ गंगा, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है। फिर ये नदी कहाँ से बहती है, मैंने आपको बताया कहाँ से शुरू होती है, फिर बहती है 1400 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि लंबी नदी है ना, वेरी लॉन्ग। इसका एंडिंग पॉइंट नरसापुरम है, दैट इज लोकेटेड इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आप देख रहे हो गोदावरी एरिया, एंड इट ड्रेन्स फाइनली इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये नदी 3 स्टेट्स को कवर कर रही है, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अच्छा सब पढ़ लिया। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लान किया है टू आउटसोर्स 60 सैनिटरी वर्कर्स थ्रू अ प्राइवेट एजेंसी गोदावरी नदी को क्लीन करने के लिए, और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी। तो ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ लेते हैं। दक्षिण गंगा है और ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, ये बता दिया। थर्ड लार्जेस्ट है, ब्रह्मगिरी माउंटेन से शुरू होती है, और ये फाइनली आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। 3 स्टेट से ये ट्रेवल करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसका जो बेसिन है उसमें एमपी, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ पार्ट आ जाता है। इसका जो बेसिन है दैट इज बाउंडेड बाय सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स नॉर्थ में, साउथ में बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट, एंड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। मैक्सिमम रेनफॉल इसको अपने साउथ वेस्ट मानसून के दौरान मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वीनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मनेर, सबरी। ये सारी आप मैप में लोकेट करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, मैं दे सकती हूं, करना ना करना आपकी इच्छा है। करोगे तो आप ही को फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको नुकसान भी होगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। विल मीट यू इन अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स। क्या करना है? लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन।